Good morning, students. A very warm welcome to all in the online classes of literature. I hope you all are fit and fine. Now, I am going to start the explanations of further chapters. In today's video, I will explain you the sixth chapter which you have already studied in class 7, a poison tree. Okay, first of all, I would explain you stanza wise, line wise, and after that I will summarize the exact theme of that poem. So, for the better clearance of this poem, you must listen the video carefully and again and again for better understanding of the chapter. Okay, actually this chapter is for the acknowledgement of anger. Okay, this chapter tells us, and also this chapter teaches us okay. So I was telling you that this chapter is all about the acknowledgement of our anger. Okay, the basic theme, the principal theme of this poem is to acknowledge the anger and to express our anger, not to hide our anger. Okay, we will get to learn that what happens when we hide our anger to in front of our enemy. What does it make an effect? Okay, so let us start the chapter, which gives us and also remind us that we should be always in one path of our life, that is to express whatever we have in our mind, whatever we have in our heart. It should be expressed. It should not be buried in our hearts. Okay, so let's start the chapter, a poison tree. First of all, I am going to read, so clearly listen it, and please try to recite it at your home. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I soon it with smile and with soft deceitful wiles, and it grew both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine, and into my garden stole when the night had wheeled the pole. In the just a minute in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. So let's start now. I will explain you stanza wise. After that, I will clarify the main idea of this poem. So listen. I was angry with my friend. As you can see, it is very clear that I was angry with my friend. मैं अपने दोस्त से क्या था? नाराज था. I told my wrath did end. मैंने अपनी परेशानी बताई, अपने गुस्से का कारण उसको बताया. ठीक है, तो मेरा जो गुस्सा था, मेरी जो नाराज़गी थी, मेरी जो दुश्मनी थी, मतलब अभी जो मैंने थोड़ी सी दुश्मनी हम दोनों के बीच में होने वाली थी, वो ख़त्म हो गई. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है? आई वॉज एंग्री विथ माई फो. मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ था, मैं अपने दुश्मन की हरकतों से नाराज़ था. आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो. लेकिन मैंने उसको बताया नहीं. मैंने उसको, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ किया था, मैंने उसको बताया नहीं. मैंने उसको छुपा के रखा, मैंने उसको अपने दिल में रखा, मैंने उसको अपने हार्ट में रखा, मैं अपने दिमाग में उसको रखे रहा, ताकि मैं उसको कुछ और कर सकूं. ठीक है, अपने दिमाग में दुनिया भर की ख्यालों को लेकर के आता रहा. मैंने उसको शेयर नहीं किया, मैंने उससे बताया नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ.
मेरी ये आपके तुम्हारे इस कारण, तुम्हारी इस आदत से, तुम्हारी इन बातों से मुझे नाराज़गी, मैंने उसको बताया ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, मेरा जो गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, एंड आई वाटर्ड इट इन fears night and morning with my tears, and I watered it in fears night and morning with my tears, and I tuned it with smiles and with soft deceitful wiles। और मैं क्या करता था कि मैंने दिखाया नहीं, मैंने अपने एनिमी को ये दिखाया ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैंने अपनी नाराज़गी को छुपा के रखा। मैं जब उसको देखता था तो मुस्कुरा देता था। ठीक है, उसको धोखा देने का कुछ मतलब मैं उसको डिसाइडफुल वाइल्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसी मुस्कान, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे कि दूसरे को लगे कि मैं खुश हूँ, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ नॉट हैप्पीनेस, इट इज़ जस्ट चीटिंग। मैं उसको चीट कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं खुश नहीं हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति नाराज़गी है, लेकिन मैं उस नाराज़गी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके नाउ सो और क्या करता हूँ कि मैं उस दूसरों के सामने तो हंसता रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करता हूँ, रोता हूँ। और रो करके, जब आप किसी बात को सोच करके परेशान होते हैं, रोते हैं, तो आपका जो गुस्सा है, आपकी जो जेलसी है दूसरे के प्रति, वो और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड था वो भी, मतलब ये जो नरेटर है या फिर हम कह सकते हैं पोएट है, वो यही चीज़ें सोच रहा है। वो कहता है कि मैं रात दिन रोया करता था, रोते रोते मैं क्या करता था, उसको मतलब जैसे एक पौधा है ना, तो कहते हो कि आप रोज़ पानी दे रहे हैं, तो ठीक इसी तरीके से मेरा जो गुस्सा है, इट एक्चुअली सिम्बलाइजेस अ सीड। ये क्या है, एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है, जिसको मैं रोज़ रात दिन रो करके उसको पानी दिया करता था, उसको सींचता था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अब जो मेरा जो वो सीड था, वो जो बीज था, गुस्से का जो बीज था, वो अब एक बड़े से वृक्ष में तब्दील हो गया है। ठीक है, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ लार्जर ट्री। नाउ लेट्स शीट वाज द थर्ड स्टैंजा, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। और वो जो सीड था ना, वो जो गुस्से का सीड था, जो एंगर का सीड था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और इतना बढ़ा, तब तक बढ़ा कि जब तक कि उसमें एक फल नहीं आ गया। फल का मतलब यहाँ पर जानते हो क्या है? फल का मतलब है एक ऐसा एक्सीडेंट, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा इवेंट जो कि किया जाता है किसके लिए, टू हार्म आवर एनिमी। एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया हुआ काम जिससे कि कोई हमारा जो दुश्मन है उसको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उस एप्पल का सिंबलाइजेशन हुआ है, जो कि ये एक्सप्रेस करता है कि हम गुस्सा करते करते धोखा देते मतलब उसको बताते भी नहीं है कि हम तुमसे नाराज़ हैं, लेकिन उसके किसी बात से हम नाराज़ हुए हैं, फिर उसका बदला लेने के लिए हम इंतज़ार करते हैं, अपने मन में उसके प्रति जो नाराज़गी उसको बढ़ाते रहते हैं और फिर हम उस पल का इंतज़ार करते हैं कि कब हम उससे बदला लें। और फिर वो पल आता है जब हम उससे बदला ले सकते हैं। उसी बदले की चाह में हम हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात उसी की बातें सोचते रहते हैं कि हम कैसे उससे बदला लें। उसी बदले को हम यहाँ पर एप्पल की तरह मान सकते हैं कि हम गुस्सा अपना बढ़ाते गए, तब तक बढ़ाया जब तक कि हमने उससे बदला नहीं ले लिया, रिवेंज। ठीक है, जब तक कि हमने उससे रिवेंज नहीं ले लिया। नाउ लिसन, एंड माई फो बिहेल्ड इट साइन। और हमने जो कुछ भी किया अपना बदला पूरा करने के लिए, हमने जो कुछ भी किया, वो हमारा जो एनिमी था उस बदले की तरफ अट्रैक्ट होता चला आया। मतलब वो जो एप्पल था ना, पेड़ पे जो एक सिंगल सा एप्पल था, वो इतना शाइन कर रहा था, इतना चमक रहा था कि वो उससे अट्रैक्ट होता चला गया। मतलब मैंने ऐसा कुछ किया कि वो हमारा एनिमी अपने आप को रोक ही नहीं पाया, वो हमसे लड़ने के लिए आ गया। ठीक है, क्या होता है देखो, एंड माई फो बिहेल्ड इट साइन and he knew that it was
माइन, और उसे ये पता था, उसे ये पता था कि ये जो एप्पल है, ये जो गुस्सा है, ये जो नाराज़गी है, ये जो बदला लेने का तरीका है, ये मेरा ही है, मतलब उस नरेटर, उस पोएट का है, लेकिन फिर भी वो आता है। क्यों आता है? देखो, एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, और एक दिन वो चोरी से मेरे गार्डन में आ जाता है उस सेब को चुराने, उस एप्पल को चुराने, उस बदले का रिवेंज लेने, जो मैंने किया उसका रिवेंज लेने। ठीक है, जब हम कुछ करेंगे तो उसके अगेंस्ट में हमारा एनिमी भी कुछ एक्शन लेता है, तो वो भी आता है। फिर क्या होता है? व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल, और जब रात में जो पोल था, उस व्हील्ड एंड पोल का मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पीछे आपके चैप्टर में इसका मीनिंग दिया गया है। व्हील्ड का मतलब होता है ऑब्सक्यूर्ड और कंसील्ड, पोल वन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द सेलेस्टियल स्फीयर। ना, ठीक है, ध्यान से बात को समझिए, मतलब आधी रात को, ये जो पूरा व्हील्ड द पोल का एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये है कि आधी रात को वो चल आता है, चोरी से चुपके से आता है, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि वो जो मेरा एनिमी था वो वहाँ पर आउटस्ट्रेच्ड, मतलब मृत अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम कि पोएट हमें बताना क्या चाहता है। पोएट एक्चुअली वांट्स टू कन्वे द मीनिंग, कन्वे द सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर एंगर। अगर हम अपने एंगर को क्या करेंगे? छुपाएंगे नहीं, बता देंगे, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो या फिर एनिमी हो। अगर हम अपने नाराज़गी का कारण बता देंगे कि हम तुमसे इसी बात से नाराज़ हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मेरी गलती थी, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी गलती के कारण ही वो दुश्मनी हुई हो, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है, पोएट हमें ये समझाना चाहता है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर दूसरे की गलती भी है तो भी हमें जाकर के उससे बात करना चाहिए कि हमारे बीच में जो कुछ भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, ना कि उस गलतफहमी में हमें जीना चाहिए। ठीक है, हम अगर उस गलतफहमी में जीते रहेंगे तो ठीक वही होगा कि हम अपने गुस्से को बढ़ाते जाएंगे, और उस गुस्से का जो अंजाम होगा वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है। इट इज़ वेरी डिजास्टरस। जब भी आप देखते हो कहीं पर भी झगड़े होते हैं, बहुत सालों से झगड़े होते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा परिवार उनके परिवार से बोलता नहीं है, हम उनके यहाँ जाते नहीं हैं, वो हमारे यहाँ आते नहीं। पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, जनरेशन्स बीत जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। यहाँ तक कि छोटे से बच्चे भी होते हैं तो वो भी बड़ों को देख करके उसी रास्ते पे निकल जाते हैं, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे गुस्से का कारण क्या है, हम उनसे क्यों नहीं बोलते हैं। इन बातों को पोएट ने इस पोयम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने एंगर को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। जैसा कि पहले ही लाइन में कहा कि जब मैंने अपने फ्रेंड से अपनी नाराज़गी की बात बताई तो वो मान गया, और फिर से हम लोग दोस्त बन गए। हमारा जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया, नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन हमने अपने दुश्मन से वो बात शेयर नहीं की, और इसलिए हमारा जो गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस करने हैं, तो पहले आप लोग करके मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक करूँगा, फिर नेक्स्ट वीक में आपको इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सरसाइजेस के साथ क्वेश्चन आंसर्स कराऊँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू।